معافی۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب آیت 34 اور یسوع نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، جیسا کہ ہم مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے، اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے کہ کیسے ہمارے نجات دہندہ ہمارے خداوند نے پکڑوائے جانے سے لے کر مصلوب ہونے تک کیا کیا سہا، کیا کیا برداشت کیا ہماری خاطر، ہماری نجات کی خاطر اس نے خود کو قربان کر دیا۔ اس نے ہماری خاطر ہر اذیت سہی۔ آج ہم یاد کرتے ہیں اس کا وہ صلیبی سفر، وہ گالیاں جو اس نے ہماری خاطر کھائیں، وہ منہ پر تھپڑ، منہ پر تھکوانا، وہ کوڑے، وہ جو اس نے ہماری خاطر کھائے، وہ کانٹوں کا تاج، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوانا، نیزے سے پسلی چھدوانا، صرف اور صرف ہماری خاطر، ہمارے گناہوں سے نجات کی خاطر اس نے خود کو قربان کر دیا تاکہ ہمیں معافی مل سکے۔ ہمارے گناہوں سے اتنی اذیت سہنے کے بعد بھی وہ صلیب پر بھی لٹکے ہماری خاطر باپ سے معافی کی مانگ رہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کو معاف کرتا ہے، کوڑے مارتے سپاہیوں کو معاف کرتا ہے، جنہوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا ان کو معاف کرتا ہے، جنہوں نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑے انہیں معاف کرتا ہے، اور صرف اپنے باپ سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، ہمارے خداوند نے ہماری نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور آج اس کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے دلوں میں سوچیں اور دھیان و گیان کریں کہ آج جو ہمارے خداوند نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، محبت کا درس دیا، کیا ہم اس کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے سوچیں کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا جو ہمارے خداوند نے ہماری خاطر کیا یا جو ہمیں درس دیا، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی اس نے ہمیں سکھائی؟ عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے، بس بہت ہوا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے تبدیل کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں میں ہم نے جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم اس دیوار کو گرا دیں اور اپنے دلوں میں محبت اونڈے لیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت کو ختم کریں تاکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی بتائی اور سکھائی ہوئی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ دوسرا کلمہ نجات کا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا 23 باب 43 آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ان دنوں ڈاکوؤں میں
और हमने इसकी कुछ कदर ना जानी, ये बात पूरी हो सके, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को जो खताकारों के दरमियान मसलूब किया गया है। लोगों ने इसे आम कैदियों से ज्यादा अहमियत ना दी, ना इसको बादशाह माना, ना इसको मसीही माना। डाकू को क्या हक हासिल था कि वो यीशु के साथ बादशाही में जाए, और वो भी इसी दिन इसने ऐसा क्या किया था? वो तो इसे कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो मरने के करीब था। नजात आपके रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, बल्कि खुदा पर ईमान रखने के वसीला से और इसके फजल से है। इसने बादशाही शमूलियत की दरखास्त की थी और यीशु ने इसको ऐसे दिन की बादशाही में जगह दी थी। हम भी इस डाकू की तरह हैं। खुदा आज हमें भी बचाना चाहता है और हमें भी नजात देना चाहता है। खुदावंद आपको और हम सबको इस फजल के तक के पास आने की तौफीक दे। आमीन। तीसरा कलमा मोहब्बत। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 26वीं आयत। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, आए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। मेरे अजीज मसीही बहनों और भाइयों, हमारे मजहब की बुनियाद क्या है? हमारा खुदावंद क्या है? हमारे प्यारे यीशु मसीह की तालीमात का बुनियादी नुक्ता नज़र क्या है? जवाब एक ही है, मोहब्बत। हमारे मसीह की मोहब्बत लाजवाल है और बेमिसाल है और उसकी मोहब्बत का कोई सानी नहीं। मोहब्बत की इससे बड़ी मिसाल और क्या है कि हमारे मसीहा ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दी। सलीबी दुखों को खर्दा पेशानी से बर्दाश्त करने वाला और अपने बदन के हर हिस्से से बहते हुए लहू की परवाह ना करने वाला सलीब पर इस फिक्र में है कि उसके बाद उसकी प्यारी माँ का ख्याल कौन रखेगा, कौन उसके आंसू पहुँचेगा। हमारा मसीह अपने उस प्यारे शागिर्द को जो उसकी प्यारी माँ के साथ खड़ा था, जो तमाम सलीबी सफ़र में मसीह के पीछे पीछे और प्यारी माँ के साथ उसका सहारा था, जो शागिर्द हमारे प्यारे मसीह की माँ के दुख में शामिल रहा था, उसे यीशु ने अपनी माँ के सुख का भी साथी ठहरा दिया। मेरे अजीजों, कितनी दलेर थी वो औरत जो अपने बेटे को यूं लहूलुहान होता देख और यूं बेइज्जत होता देख बिल्कुल टूट चुकी थी, जिसकी रूह लर्ज रही थी और जान में तलवार भिड़ने के बावजूद वो अपने बेटे का हौसला बनी रही और आंखों में आंखें डालकर हिम्मत देती रही। आखिर ये जज्बा, ये एहसास और कुव्वत कहाँ से आई? मोहब्बत से आई। आज हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों में मोहब्बत को आम करें, लेकिन अफसोस कि दूसरों से मोहब्बत तो दूर, हम इंसान तो खुद से भी मोहब्बत करना भूल गए हैं। आइए इन रोज़ों के आयाम में हम सब मिलकर अपने दिलों से नफरतों और खतूतों को निकाल कर मोहब्बत को अपने दिलों में जगा दें, क्योंकि जहाँ मोहब्बत वहाँ खुदा है। आइए अपने अंदर खुदा को बसाएं और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करें। आमीन। राम यीशु मसीह का ये चौथा कलमा सलीब पर कफारे का कलमा है। तो इस कलमे को मैं खुद ही बयान करूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर कलमा कफारे का कलमा है। नावी गढ़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इन सलीबी कलमात पर गौर करते हैं, जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया, दुनिया को बनाया, तो 7 दिनों में खुदा ने सारे काम को मुकम्मल किया।
तो जब यीशु मसीह ने निजात के सारे काम को तकमील तक पहुंचाया तो सलीब पर 7 कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किए। जब खुदावंद यीशु मसीह 12 बजे अपनी जान का नजराना पेश करता है तो हम जानते हैं कि यरूशलेम में अंधेरा छा जाता है, और जब यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा होते हैं तो बड़ी रोशनी होती है। वही यरूशलेम जिसमें वो दाखिल होते हैं और रोते हैं, वही लोग जो यीशु मसीह के इस्तकबाल करते हैं, होशाना के नारे बुलंद करते हैं, वही लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि सलीब दो, सलीब दो। ये कलमात जब खुदावंद यीशु मसीह अदा करते हैं तो ये अमूस नबी की एक पेशगोई पूरी होती है कि मैं सूरज को दोपहर ही को गुरूब कर दूंगा, तुम्हारी गीतों को मातम से और तुम्हारे सब गीतों को मरीसा में बदल दूंगा। तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, जान देते हैं, तो यरूशलेम में अंधेरा छा जाता है, आंधियां शोर मचाती हैं। लेकिन ये हमारी जिंदगी के लिए जब खुदा यीशु मसीह कफारा देते हैं तो हमें ये दर्स देते हैं मोहब्बत का, मुआफ़ी का, कफारे का। तो ये कलमात खुदा यीशु मसीह अदा करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने पहले ही पेशगोई की थी कि लूंगड़ियों के लिए बांधे हैं और बाग के परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्रे इंसान के लिए सर धरने की जगह नहीं है। जब यीशु मसीह की हम जिंदगी पर गौर करते हैं, ये इस हफ्ते में, मुकद्दस हफ्ते में देखते हैं कि यीशु मसीह का ज़मीनी सफ़र है, तो यीशु मसीह ने कहा कि लूंगड़ियों के लिए मांदे और बाग के परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्रे इंसान के लिए सर धरने की जगह नहीं है। यीशु मसीह पैदा होते हैं कुंडली में, लेकिन वो भी यीशु मसीह की अपनी नहीं होती, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह है। सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह का है। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, जब इस कायनात के बारे में जानते हैं, तो यीशु मसीह जिस कुंडली में पैदा होते हैं वो भी उसकी अपनी नहीं है। जिस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह सफर करते हैं वो भी उसकी अपनी नहीं है। जिस कमरे में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मिलकर खाना खाते हैं वो भी उसका अपना नहीं है। जिस सलीब पर यीशु मसीह को लटका दिया जाता है वो भी उसकी अपनी नहीं है, और जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा जाता है वो भी उसकी अपनी नहीं है। लेकिन वो बादशाहों का बादशाह हमारी खातिर इस दुनिया में आता है। हम जब देखते हैं एक डाकू के बारे में, वो भी यीशु मसीह से अपील करता है, दरख्वास्त करता है कि ऐ खुदावंद, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। एक मरने वाला दूसरे मरने वाले से दरख्वास्त करता है, लेकिन वो जानता है शायद उसे कई जगह उसने देखा हो, उसके मोजज़ात देखे हों, लेकिन खुदा रहम करने वाला है, खुदा तरस करने वाला है, खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा हमेशा की जिंदगी देने वाला है। इन सलीबी कलमात में हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये कलमात जब अदा किए तो उसने निजात के सारे काम को पूरा किया। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा हमें मौका देता है, खुदा वक़्त देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी बातों को, उसके कलमात को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करें। उसी कलाम के वसीला से आमीन। आइए चंद लम्हात के लिए हम दुआ करेंगे। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत मुकद्दस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अदा किया, ताकि आप काम को छोड़कर तेरे पास आए और तुझसे बरकत हासिल करें। तो हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को अपनी तरफ ले जा। हमेशा हम सबको वफादारी सिखाना, ताकि वफादारी के साथ तेरे साथ लिपटे रहे और तेरा यीशु नाम हमेशा हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में इज्जत को चला पाए। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हो, ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 29 बाब उसके 28 आए। यीशु को पहली दफ़ा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी।
यीशु को 2 दफ़ा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे स्लीप देने से पहले और दूसरी दोपहर 3 बजे मौत से बिल्कुल पहले। मत्ती 27 बाब उसकी 33 आयत से 34 आयत तक। और उस जगह जो गलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पेट मिली मैं उसे पिलाने को दी, मगर उसने चाह कर पीना ना चाहा। मरकस 15 बाब उसकी 22 आयत से 23 आयत है। और वो उसे मुकाम गलगता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुड़ मिली हुई मैं उसे दी मगर उसने ना ली। ये वो मैं है जो मुकाम गलगता पर पहुँचते ही यीशु को पेश की गई थी। कहते हैं कि यरूशलेम में एक अमीर औरतों का ग्रुप था जो मिसाल 31 बाब उसकी 6 आयत के मुताबिक, जिसमें लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है और मैं उसको दो जो तक जान है। इस पर अमल करते हुए ये मैं मुहैया किया करती थी। मैं प्यासा हूँ। खुदाम यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा था कि वो निविष्टा पूरा हो जो खुदाम यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस की तमाम बातों को पूरा करने आया था। कलाम मुक़द्दस का एक नुक्ता भी पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। खुदाम यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया। छठा कलमा फतामंदी का। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत। खुदा यीशु मसीह का ये ऐलान एक फतामंदी और तकमील का ऐलान था। इस ऐलान के साथ और कौन सी बातों की तकमील हुई, आइए देखते हैं। तमाम वादे और निबूवतें पूरी हुई, और जब उसने कहा तमाम हुआ तो उसका मतलब है कि कलाम मुक़द्दस की तमाम बातें पूरी हुई जो खुदा ने अपने लोगों और नबियों की मार्फत कही। इसने कहा कि तमाम हुआ तो ना सिर्फ वो कुर्बानियाँ ख़त्म हो गईं जो पुराने अहदनामे में यहूदियों को करने के लिए दी गई थी, बल्कि उनका मतलब और उनका मकसद भी समझा दिया गया। वो तमाम कुर्बानियाँ और उसमें पूरी हो गई और कोई कुर्बानियाँ गुजारने नहीं जाएगी। बस बैलों और बछड़ों का खून नहीं बहाया जाएगा। कामिल भरे की कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जो गुनाहों को डांप सकती थी और ख़त्म नहीं कर सकती थी। आइए इस बात का इख्तियार दें। आइए सब जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने ईमान से मसीह को अपना सब कुछ कबूल कर लिया है, अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ उस बात का इख्तियार दे के तमाम हुआ। खुदा आपको इसके तमाम किए हुए काम को कबूल करने का फजल अता करे। आमीन। 7वां कलमा खिलाफ का। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। लूका 23वां बाब उसकी 46 आयत। ये खुदा यीशु मसीह के मुँह से निकलने वाला 7वां कलमा था। आइए इस कलमे की तफसील को देखते हैं। ये अल्फाज ज़बूर 31 उसका 5 आयत के हैं। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फतिया दिया है। यीशु के नाम से इस कदर मामूर था कि अपनी मौत के वक्त भी उसके मुंह से कलाम की बातें निकलती हैं। यीशु ने सलीब पर पहला लफ्ज़ बाप कहा, ऐ बाप उनको माफ़ कर, और आखिरी कलमे में भी बाप को पुकारा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दुनिया की पहली मौत की दास्तान कुछ यूँ है। जलाल का आगाज़ यीशु ने अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंप कर कहा ताकि बहिश्त जो इंसान के लिए बंद हो चुका था खुल जाए। यीशु का बुलंद आवाज़ से चिल्लाना हमें बताता है
کہ مقدسین کی روحیں اب اور زیادہ عالم افضل میں نہیں رہ سکتی، بلکہ اب سے وہ خدا باپ کے پاس اور ساتھ ہیں۔ اے خدا ہمیں یہ فضل عطا کر کہ ہم اپنے سب دلوں کو تیری محبت اور اس عظیم فدیے کو یاد کر کے اور اس عظیم کفارے کو یاد کر کے نرم کریں اور اپنے دلوں میں تیری محبت کا چشمہ جاری کر سکیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے۔